Good afternoon, everyone. Myself, CA Raj Chawla. Welcome you all in this today webinar on PMLA. Today we have a very young and dynamic chartered accountant, CA Shikhar Gargji, and he will guide us that how a chartered accountant can play important role in the cases of PMLA. And as we all know that in today's scenario, this PMLA subject is very important for all of us. And I welcome CA Shikhar ji. Also, I welcome Akanksha ji, our today moderator of the webinar. Welcome, Akanksha ji. And Thank you, sir. now I request Akanksha ji to please take forward this webinar. Thank you, sir. Good evening, everyone, and a warm welcome to this insightful session on combating money laundering under PMLA compliance, the evolving role of chartered accountants under PMLA. It's my pleasure to introduce our esteemed speaker for today's session, Advocate CA Shikhar Garg. Mr. Garg qualified as a chartered accountant in May 2017 at a young age of 21, and he began his professional journey with Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, where he worked for 4 years from 2018 to 2022. And he simultaneously also pursued his CA/CPA qualification. In 2022, he joined his father's CA practice, and soon he developed a keen interest in taxation as well as administrative and criminal laws. He has successfully represented several clients before the ITAT, and in 2025, he expanded his CA practice before the Delhi High Court, particularly in the area of economic offense laws. Now, a brief overview of today's topic. In an era where financial crimes are becoming increasingly sophisticated and cross border in nature, the role of chartered accountants has evolved far beyond accounting and auditing. We are now the guardians of financial integrity, entrusted with upholding transparency, ethics, and compliance under the frameworks of PMLA and FATF standards. As we explore this theme today, let us reflect on how we as professionals can transition from being mere compliance officers to being proactive sentinels of trust, ensuring that our financial systems remain clean, credible, and transparent and future ready. Let us begin this engaging and enlightening journey of learning and growing together. So, I would like to invite you, sir, to start today's session. Thank you, Ms. Akansha. Thank you, everyone. First of all, respected Raj Chawla ji and his team members for organizing this absolutely wonderful webinar. And last time also, we had a great webinar. That was a topic with regard to Section 148 of the Income Tax Act, reassessment. Now we are getting into a much more interesting topic, that is money laundering and the evolving role of chartered accountant in money laundering. So without any further delay, let's start the session. My screen is visible. एक बारी मेरे को ये बता दीजिए please, मेरी screen is visible? Yes, sir. Okay, thank you. So this topic is way more interesting, and it is in news since beginning, especially since 2014. Money laundering and involving role of chartered accountants in it. How money laundering happens, how it can be prevented, what chartered accountant can do to prevent it. These are few topics that we will see in this webinar. मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और मैंने इसमें इवेंचुअली देखा है कि काफी सारे प्रोफेशनल्स दे फील दैट ब्लैक मनी इज इक्विवेलेंट टू मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरचेंजेबली ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग की. तो
First of all, money laundering or tainted money. Money laundering is equivalent to tainted money. And what is black money? Please मेरे को अपने comments दीजिए. What is black money and what is tainted money? Black money and tainted money, they both are completely separate tangent. Tainted money means जिसका source of money is earned from a criminal activity. उसमें हमें ये नहीं देखना कि whether that money we have paid income tax or GST for that money or not. Only what we have to determine is the source of money, that is from a criminal activity. Whereas black money is completely on a different tangent. उसमें हमें सोर्स ऑफ फंड नहीं देखना कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, वेदर वो लेजिटिमेट बिजनेस से और इलेजिटिमेट एक्टिविटी से है और क्रिमिनल एक्टिविटी से है. द ओनली थिंग वी सी इन ब्लैक मनी इज कि वेदर इनकम टैक्स और जीएसटी पे हो गया है कि नहीं हुआ है. तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंटेड मनी एंड ब्लैक मनी. डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग काफी चेंज हुई है फ्रॉम 2002 से लेके आज की डेट में 2025 में. डेफिनेशन ऑफ टेंटेड मनी हैज गॉन अ सी चेंज. पहले जो एक्टिविटी होती थी, पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन थी वो सिंपल भाषा में ये थी कि कोई भी मनी अगर अर्न किया है फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी और उसके बाद उस क्रिमिनल एक्टिविटी को अर्न करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया है legalized money as a untainted money, then it is called as money laundering. तो पहले टू स्टेप प्रोसीजर्स होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के. सबसे पहले अर्निंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी एंड सेकंड कन्वर्टिंग दैट मनी इनटू अनटेंटेड मनी. तो दो स्टेप प्रोसीजर होते थे. अब सिंगल स्टेप 2025 में आफ्टर 2000 फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट आई एंड 2025 में जो डेफिनेशन है वो सिंपल रह गई है वन स्टेप कि अगर मनी अर्न फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी किया है दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग. सोर्स जो है उस एक्टिविटी का इलीगल है दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग. दैट इज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. लॉन्ड्री का क्या मतलब होता था? लॉन्ड्री का मतलब जैसे कपड़े धोना होता है वैसे ही टेंटेड को अनटेंटेड में चेंज करना इज मनी लॉन्ड्रिंग. आज की डेट में जो डेफिनेशन है वो सिंपल अर्निंग मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी इज मनी लॉन्ड्रिंग. अब कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी अर्न करना इज ट्रीटेड एज मनी लॉन्ड्रिंग? तो उसके लिए सेक्शन 21Y डिफाइंस करता है प्रेडिकेट ऑफेंस. देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन आईपीसी या और डिफरेंट एक्ट्स में ऑफेंसेस है, उनको कहते हैं शेड्यूल ऑफेंस. और वो वाले ऑफेंसेस जब पीएमएलए एक्ट में आते हैं तो उनको कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस. तो अगर कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंसेस से अर्निंग हुई है दैट इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. सोर्स उसका इलीगल है. मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं. लाइक सेक्शन 364 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी. 364 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी इज किडनैपिंग, रैंसम फॉर किडनैपिंग. तो इन केस कोई अक्यूज ने किडनैपिंग करी है दैट इज एन ऑफेंस इन आईपीसी. और अगर उसने रैंसम मांगी है, से किसी ने किडनैपिंग करी और 50 लाख रुपीस मांगे हैं फ्रॉम किडनैपिंग, तो वो 50 लाख रुपीस इज अ मनी लॉन्डर्ड बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट मनी फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी. तो जो किडनैपिंग करी है उसके आईपीसी में अलग प्रोविजंस चलेंगे, उसकी अलग पनिशमेंट होगी जिसके लिए पुलिस अथॉरिटी या फिर अगर केस थोड़ा हाई लेवल पे जाता है तो सीबीआई अथॉरिटीज आएंगी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड आएगा. और अगर उसने मनी अर्न किया है, जो 50 लाख रुपीस उसने अर्न किया है, उसके लिए पीएमएलए इन्वोक होगा. तो मनी अर्न फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी
indicates money laundering. ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी जो हम इनकम टैक्स या जीएसटी के लिए पढ़ते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, टेंटेड मनी, कि दैट इज अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्स. इनकम टैक्स में अगर किसी ने इलीगल सोर्स से अर्निंग करी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपने टैक्स पे कर दिया है, देन यू आर स्कॉट फ्री इन इनकम टैक्स. जीएसटी वालों को नेचर ऑफ मनी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको अपना रेट ऑफ जीएसटी लगाना है एंड देन आगे बढ़ना है. लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में सोर्स ऑफ फंड अगर इलीगल है, देन मनी लॉन्ड्रिंग वुड बी अट्रैक्टेड. पीएमएलए आगे चले, अगर हम सेक्शन 1 ऑफ द पीएमएलए, तो पीएमएलए एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये डेवलप हुआ था, ये एक्ट डेवलप हुआ 17 जनवरी 2003 में. और इसके डेवलपमेंट में एक सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 है जो कि एक डेफर्ड लेजिस्लेचर है. मीनिंग डेफर्ड लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? डेफर्ड लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, लेजिस्लेचर ने उसे इंट्रोड्यूस किया है और वो डेलीगेट कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या और किसी अथॉरिटी को फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन डेट, तो उसको डेफर्ड लेजिस्लेचर कहते हैं. तो पीएमएलए 17 जनवरी 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया 1 जुलाई 2005 में. ऑलमोस्ट 2.5 सालों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया है. कोई इनकम टैक्स और जीएसटी में यहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे, तो सिर्फ जीएसटी के जो प्रोफेशनल्स है दे विल नो. जीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 1 क्लॉज 3 है, सब सेक्शन 3 है सीजीएसटी एक्ट का, जो कि डेफर्ड लेजिस्लेचर है. जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 22 जून 2017 में. 22 जून 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ एंड अल्टीमेटली वो इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 में. 8 दिनों बाद वो इंप्लीमेंट हुआ. ये जीएसटी में और इतने प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 2 सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेज कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि एमएस, एचएसजी, एटीएफ, सीएनजी या क्रूड ऑयल, ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा व्हेनेवर इट इज बीइंग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आज की डेट में मोर देन 8 years हैव गॉन पास्ट, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी एप्लीकेबिलिटी नोटिफाई नहीं करी है. दैट इज अ डेफर्ड लेजिस्लेचर. या सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेज कि टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम सर्टेन कंपनी फॉर जीएसटी, उसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट के लिए मोर देन 1 year प्रोवाइड किया गया है. ये सेक्शन 52 सेज कि ई कॉमर्स कंपनी को टीसीएस कलेक्ट करना है जीएसटी में फॉर बेटर ट्रेलिंग, उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट 1 year बाद हुई थी. तो डेफर्ड लेजिस्लेचर के एग्जांपल बहुत सारे हैं जीएसटी में. इनकम टैक्स में भी डेफर्ड लेजिस्लेचर के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. सेक्शन 139 कैपिटल AA इनकम टैक्स एक्ट का जो कहता है कि हर पैन आधार से लिंक होना चाहिए. दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंस एक्ट 2017 एंड ऑलमोस्ट 6 months बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया. क्यों? क्योंकि सीबीडीटी को एंड यूआईडीएआई को, यूडाई को, दोनों को इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम चाहिए. तो डेफर्ड लेजिस्लेशन क्यों होता है, एक्ट लेजिस्लेचर क्यों प्रपोज करता है डेफर्ड लेजिस्लेशन? सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एग्जीक्यूटिव को या अफेक्टेड पर्संस को प्रिपेयरनेस के लिए टाइम चाहिए. सिंपली लेजिस्लेचर कैन नॉट enact and implement the law from day one. If the legislature feels that they need time for its implementation, then deferred enforcement clauses are legitimate. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वैलिडिटी अपहेल्ड करी है. अब अगर हम देखें तो पीएमएलए में ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ. एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर्डनेस क्या हुई उन 2.5 सालों में? 2.5 years में क्या क्या एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर्डनेस हुई? सबसे पहले तो एक विंग बना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एक विंग बना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
ये विंग बना के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी सुटेबल इंप्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विंग डेवलप किया। सेकेंडली, उन्होंने प्रेडिकेट ऑफेंसेस डेवलप करे। कौन कौन से प्रेडिकेट ऑफेंसेस है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंस बनाए। और तीसरा, सेक्शन 48 ऑफ द पीएमएलए, सेक्शन 48 ऑफ द पीएमएलए जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ईडी ऑफिसर्स करता है, जिसमें ईडी को एज एन प्रोसिक्यूशन एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमएलए। सेक्शन 48 of the PMLA says director, assistant director, additional or deputy director of ED and any other authority or any other person appointed by the central government. आज की डेट में 2025 में अभी ओनली ईडी ऑफिशियल्स है जिनके पास पीएमएलए प्रोसीडिंग्स की इन्वेस्टिगेशन है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम ईडी अथॉरिटीज अभी तक नहीं है, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है फॉर इट्स अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम ईडी। तो अब अगर हम देखें, हम बेसिक्स अभी अंडरस्टैंडिंग करते हैं पीएमएलए की क्या है। बेसिक्स इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसे प्रिवेंट करना है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। जो भी अक्यूज है जिन्होंने भी क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी अर्न किया है, उनके लिए इसे अनप्रॉफिटेबल बनाना है। फिर उसके बाद जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्निंग है, उसको कन्फिस्केट और अटैच करना है। उन प्रोसीडिंग्स को इकोनॉमी में फ्लो नहीं होने देना है, उनको अटैच करना है। फिर उन्हें पनिश करना है, उन ऑफेंडर्स को पनिश करना है जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी अर्न किया है। और एक और है, दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज नॉट एन फिस्कल लेजिस्लेचर। इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं है जिसमें अथॉरिटीज मनी लेती है और उसके बाद एज अ टैक्स अपने पास रख लेती है, गवर्नमेंट कॉफर्स में रख लेती है। पीएमएलए का पर्पस गवर्नमेंट कॉफर्स फिलअप करना नहीं है। पीएमएलए का पर्पस है कि मनी, जो भी इलीगल मनी अर्न किया है, उसको जो विक्टिम्स है, अगर उन्होंने सफिशिएंट सेफगार्ड्स लिए हैं, और वो पैसा विक्टिम्स को रिपैट्रिएट और रिस्टोर करना है। ईडी कन्फिस्केट करती है फ्रॉम ऑफेंडर्स और विक्टिम्स को रिपैट्रिएट करती है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जिसमें ट्राइब्यूनल जेन्युइन एंड बोनाफाइड विक्टिम्स को पैसा रिपैट्रिएट करती है। तो मेरा इसमें एक स्मॉल क्वेश्चन है, अगर मैं अपने एग्जांपल में आऊं, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था 364 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी व्हिच सेज रैंसम फॉर किडनैपिंग इज एन ऑफेंस। तो अगर किसी अक्यूज ने, किसी पर्सन ने किडनैपिंग करी है और किडनैपिंग करने से जो भी ऑफेंस हुआ है वो आईपीसी में उसकी प्रोसीडिंग अलग चलेगी, बट उस ऑफेंस से, किडनैपिंग करने से उसने 50 लाख रुपीस रैंसम की डिमांड करी है और उसने 50 लाख रुपीस अर्न कर लिए किडनैपिंग करके, देन पीएमएलए किक्स इन। तो किडनैपिंग इज एन सेपरेट ऑफेंस and money earned from kidnapping is a separate offense that is under an offense of PMLA. अब मेरा इसमें छोटा सा क्वेश्चन है कि जब scheduled offense ऑलरेडी पनिशेबल ऑफेंस है, जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है वो ऑलरेडी एक पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी में, उसके लिए सीआरपीसी के प्रोविजंस ऑलरेडी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उससे अगर मनी अर्न हो रहा है और अगर जेन्युइन पर्सन या जो अक्यूज है वो उससे मनी अर्न करके टैक्स पे कर देता है, वो उसे इनकम टैक्स पे कर देता है, जीएसटी पे कर देता है, तो इससे हमें एक्ट को क्यों लाना पड़ा, क्यों हमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाना पड़ा? अगर वो पर्सन उसमें प्रॉपर टैक्स पे कर देता है और उसने इलीगल मेथोडोलॉजी से भी अर्न किया तो भी, अगर हम एक बारी को रिपाट्रिएट के जो प्रोविजंस है, रिपाट्रिएट का ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं करें, क्योंकि दिस इज रिपाट्रिएशन ऑब्जेक्शन इज नॉट सिंस इंसेप्शन, इट हैज कम्स इन फाइनेंस एक्ट 2015। तो क्या पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग का? क्यों, जब ऑलरेडी एक शेड्यूल ऑफेंस है जिसके लिए सीआरपीसी और आईपीसी लगे हुए हैं,
तो अगर उससे मनी अर्न करा है और सारे टैक्सेस पे कर दिए तो क्यों उनको पीएमएलए लाने की जरूरत पड़ी? प्लीज मेरे को इसका आंसर लिख के बताइए, कोई बताइए मेरे को इसका आंसर। क्यों लेजिस्लेचर को पीएमएलए लाने की जरूरत पड़ी? पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस लाने की जरूरत इस वजह से पड़ी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस इन द इंटरनेशनल फोरम एंड इंटरनेशनल फोरम की जो एजेंसीज है उन्होंने कहा है कि जो और हीनियस क्राइम्स है, फॉर एग्जांपल टेरर एक्टिविटीज है या फिर ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्टिविटीज है, तो ये जो एक्टिविटीज है ये सारी की सारी फंडिंग जो हो रही है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। कोई भी फंडिंग टेरर की और नारकोटिक्स की, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स की कोई भी फंडिंग लेजिटिमेट सोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं होती है। कोई अपना लेजिटिमेट पैसा कमाता है वो टेरर फंडिंग में नहीं डालेगा। जो भी पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्न हो रहा है वो ही पैसा टेरर फंडिंग या नारकोटिक्स में जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग अगर हम कॉम्बैट कर पाए, इंडिया एज अ कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग अगर कम्बैट कर लिया, उसने क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी अर्निंग करना कम्बैट हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो और हीनियस क्राइम्स है लाइक टेरर फंडिंग और ड्रग्स एंड नारकोटिक्स वो शट डाउन हो जाएगा। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज जो भी मनी क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्न किया है वो किसी अच्छे सोर्स में यूटिलाइज नहीं होगा। दैट इज वाई गवर्नमेंट को पीएमएलए एक्ट लाना पड़ा कि पर्सन शुड अर्न फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स ओनली, इवन दो इलेजिटिमेट सोर्स से वो टैक्सेस सारे पे कर दे, देन ऑल्सो लेजिटिमेट सोर्स इज नेसेसरी। अब अगर हम ईडी का देखें, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग पढ़ते हैं। ईडी फॉर्म हुई थी 1 मई 1956 को। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये फॉर्म हुई 1 मई 1956 को अंडर फेरा एक्ट 1947। फेरा एक्ट क्या करता है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर मनी है, जितना भी मनी बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, वो सफिशिएंट सेफगार्ड्स के थ्रू पास होते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको डिटरमाइन करता है। पहले फेरा एक्ट 1947 बना, उसकी बिकॉज ऑफ विच ईडी फॉर्म हुई। देन फेरा एक्ट 1973 बना जिसमें और सफिशिएंट सेफगार्ड्स डाले गए, एंड देन फेमा एक्ट 2000 बना जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, एंड जो भी हवाला चैनल्स है वो सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया ही आ रहे हैं। तो ईडी फेरा के अंडर डेवलप हुई एंड आगे उसे फर्दर एजुडिकेशन दे दिया गया पीएमएलए का, जो 2002 में आया एक्ट। पीएमएलए 2002 में एक्ट आया जिसकी एजुडिकेशन ईडी को दे दी गई। फिर 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट आया है, उसकी भी एजुडिकेशन ईडी को दे दी गई है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018 क्या होता है? वो ये कहता है कि कोई भी अगर ऑफेंडर है जिसका मोर देन 100 करोड़ का ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहा है, ऑफेंस चल रहा है, और वो भाग गया है, वो फ्यूजिटिव हो गया है, वो इंडिया से आउटसाइड हो गया और वो ट्रायल कंप्लीट करने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में ले सकते हैं। और ईडी जो है बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रायल, ईडी उनके प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। तो आज की डेट में मोर देन 24 इंडिविजुअल्स है जो फियो एक्ट में कवर्ड है इंडिया में, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये बड़े बड़े जो नाम हैं जिन्होंने मोर देन 100 करोड़ के फ्रॉड करे हैं और वो आउटसाइड इंडिया चले गए हैं। तो ईडी क्या है? ईडी एक प्रीमियम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि ट्रेस करती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये स्पेशलाइज करती है ट्रेसिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, पीएमएलए की जो एक्टिविटी है, दैट इज बीइंग डन
with cool calculations. This is not done in the heat of a moment. हीट ऑफ द मोमेंट की जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए पुलिस है, सीबीआई है, जो कि उन ऑफेंसेस को रिलेटिवली इजी होता है ट्रुथ फाइंड आउट करना। बट जो काफी सोच समझ से कूल कैलकुलेशन से एक्टिविटीज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ लेयरिंग इन्वॉल्व होती है, नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ शेल कंपनीज खुलती है, उसमें प्रोसीड्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। वो ट्रांसफर जो होते हैं वो हो सकता है स्टॉक मार्केट में चला जाए, वो हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में चला जाए, हो सकता है कैश एक्सपेंडिचर हो जाए, उसका मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती है। वो एक दूसरी कंपनी में एज अ शेयर कैपिटल जाए, दूसरी कंपनी में एज अ लोन जाए, किस तरीके से बोगस अकोमोडेशन एंट्री है, तो उसका ट्रेसिंग करने के लिए जो फॉरेंसिक टूल्स इन्वॉल्व है वो ईडी के पास है, वो और कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं है। That is why ED is interested for PMLA activities. अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को समझे कि ईडी क्या है, ईडी का जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, सबसे पहले इसमें होता है डायरेक्टर ईडी, जो पूरी ऑल इंडिया एक ही है। डायरेक्टर ईडी इस समय राहुल नवीन है, जो IRS ऑफिसर है 1993 बैच के। इस डायरेक्टर ईडी के अपॉइंटमेंट का एक अलग स्टोरी है कि वो कैसे अपॉइंट होता है। उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करता है, और उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते थे। उसके बाद इस एक्ट में भी अमेंडमेंट आया है, इनके प्रोसीजर में भी अमेंडमेंट आया है, वो भी सब जुडाइज मैटर है। सबसे पहला तो इसमें जो टॉप पोजीशन है जो होल्ड करता है वो डायरेक्टर ईडी है। उसके बाद 5 स्पेशल डायरेक्टर्स है ऑल ओवर इंडिया। 5 इन्होंने रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, एक नॉर्दर्न जोन, एक सेंट्रल जोन, एक वेस्ट, साउथ और ईस्ट। नॉर्दर्न जोन जो है वो है ईडी का चंडीगढ़ में, सेंट्रल जोन जो है वो है दिल्ली में, फिर बॉम्बे में है, वेस्ट जोन, चेन्नई और कोलकाता। इन जगहों में ईडी के 5 रीजनल जोन है, जिसमें 5 स्पेशल डायरेक्टर बैठते हैं ऑल इंडिया। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर्स है उनके नीचे, फिर उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ्स है। तो ईडी के इस समय 5 मेन रीजन है, टोटल 27 जोन्स है, और उसके अंदर भी 18 सब जोन्स है। तो ईडी का ऑलमोस्ट इस समय हर स्टेट में एक ना एक ऑफिस है ही है। हर स्टेट में इतने सारे जोन्स एंड सब जोन्स बन चुके हैं कि हर स्टेट में 1 या 2 ऑफिस ईडी के है। और वो ज्यादातर जो ऑफिस बने हैं वो ऑलरेडी एक्यूज पर्सन की, ये जिन्होंने जो ऑफेंडर्स है उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर करके उन्होंने अपने ऑफिस बना लिए हैं। 2011 में अगर हम देखें कि ईडी का किस लेवल पे काम जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस, किस लेवल पे स्केल अप हो रहे हैं अब धीरे धीरे। 2011 में इनके पास 745 का स्टाफ था, वो इंक्रीज होके 2011 में इनका 745 से 2063 का स्टाफ हो गया। 2011 में ही इनको इतने इंक्रीजमेंट करने की जरूरत पड़ गई। आज की डेट में इनका स्टाफ जो है वो 2030 है, उनका स्टाफ 2011 से डिक्रीज हो गया, 2030 हो गया, बिकॉज ईडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑन अ डेप्यूटेशन बेसिस लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। और जो डेप्यूटेड लोग है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग है, कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों की इंफॉर्मेशन ईडी अपनी एनुअल रिपोर्ट में नहीं देती। ईडी की भी एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताती है कि क्या क्या उन्होंने एक्शंस लिए हैं। तो 2025 में उनकी स्ट्रेंथ 2030 हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन कि ईडी इतनी प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इतने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैंडल करती है, कितना क्या उनको डेप्यूटेड स्टाफ को रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ पे रिलाय करना चाहिए, दैट इज अ सेपरेट क्वेरी। खैर अगर हम देखें तो ईडी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट जो आती है ईडी की 24-25 की 2024-25 की रिपोर्ट में ईडी ने एक लिखा है कि हमने टिल 31 मार्च 2025 तक में 1,54,000 करोड़ के अटैचमेंट करी है।
इन्होंने ऑफेंडर से 1,54,000 करोड़ की अटैचमेंट कर चुके हैं। सेक्शन 5 में अटैचमेंट होती है पीएमएलए की, वो जो अटैचमेंट होती है वो सेक्शन 8 में अफर्म करानी होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। तो आज 31 मार्च 2025 तक 1,54,000 से 1,06,000 करोड़ की अटैचमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, अफर्म हो चुकी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। और सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में करीब करीब 30,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो रेस्टिट्यूट हो चुका है विक्टिम्स को। इसमें से 1,06,000 करोड़ में से मोर देन 30,000 करोड़ जो है वो ऑलरेडी रिपाट्रिएट ईडी कर चुका है विक्टिम्स को। इन फिगर्स में ईडी प्लस फियो एक्ट की भी प्रोसीडिंग्स जुड़ी हुई है, बिकॉज ईडी इन तीनों को हैंडल करता है, फेमा को, पीएमएलए को और फियो एक्ट को। तो ये उनकी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने इतनी अटैचमेंट करी है, इतनी अप्रूव हो चुकी है और इतना फंड जो है वो ऑलरेडी विक्टिम्स को दे चुकी है अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए। अब हम एक दो केसेस देखते हैं जो करप्शन केसेस है, जो ईडी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है कि किस तरीके से हमारे केसेस होते हैं, करप्शन केसेस उन्होंने पकड़े हैं। तो एक केस है जो कि बिहार गवर्नमेंट में हुआ। एक सीनियर ऑफिसर था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार गवर्नमेंट में डेप्यूट हुआ। उसके टेन्योर में पाया गया कि उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, बाकी और पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिलके उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से किकबैक्स ली। उसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाया और बदले में उन्होंने इलीगल ग्रेटिफिकेशन एंड किकबैक्स दिए। करीब करीब 90 करोड़ का, करीब करीब 90 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। किकबैक्स जो है जो लेते हैं वो इज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, बिकॉज वो ऑलरेडी पीसी एक्ट में कवर्ड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कवर्ड है अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किकबैक्स लेता है कॉन्ट्रैक्टर से। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से किकबैक्स लिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 90 करोड़ का जनरेट किया। वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाला या कैश एक्सपेंडिचर किया। ईडी ने मोर देन 70 प्लेसेस में सर्च कंडक्ट करी। उन सर्च में 11 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया और मोर देन 24 करोड़ के आइटम्स जो है, कैश आइटम या लग्जरी वॉचेस और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो अटैच करी है। नेक्स्ट केस इसमें आया है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का। दिस इज अ बिग केस। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने 1045 साइट्स लैंड जो है पार्सल वो सिलेक्टिवली बिल्डर्स को अलॉट करी है विदाउट फॉलोइंग इन कंट्रावेंशन ऑफ देयर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस। मोर देन 700 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुए। उन्होंने देखा इलीगल ग्रेटिफिकेशन कैसे मिली हुई है, कैश में मिली हुई है, कोई किसी ने कोई और प्रॉपर्टी दे रखी है, वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन, वो जो मनी है वो वाया गिफ्ट डीड डिफरेंट इंडिविजुअल्स को और ट्रांसफर करी है। वो सारी लेयरिंग, वो सारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ट्रेस करने के बाद ईडी ने आज तक 82 प्रॉपर्टीज जो है अटैच करी है। मोर देन 300 करोड़ की अटैचमेंट हो गई है मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस से। दिस इज वन ऑफ द बिग केस इन ईडी ग्रैब। अब एक दो एग्जांपल्स है जो कि रेस्टिट्यूशन के है, किस तरीके से पैसा रिपैट्रिएट करना है विक्टिम्स को। तो इसमें सबसे पहला केस आता है एसआरएस ग्रुप का, जो कि अनिल जिंदल इसके डायरेक्टर है। इन ग्रुप मेंबर्स ने क्या किया कि थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स से मनी जो है वो लिया कि वो उनको होम प्रोवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने करोड़ ऑफ रुपीस एसआरएस ग्रुप को दिया। उस एसआरएस ग्रुप ने वो सारा का सारा मनी जो है वो साइफन ऑफ कर दिया शेल कंपनीज में। उन लोगों को उन्होंने अनसाइन रिसिप्ट दे दी कि हमने आपसे पैसा लिया है, अनसाइन रिसिप्ट दे दी है। ईडी ने ईसीआईआर रजिस्टर करी, ईडी केस फॉर्म हुआ और करोड़ ऑफ एसेट्स, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एसेट्स जो डायरेक्टर के नाम पे थे उनको अटैच कर दिया। आज तक हंड्रेड्स ऑफ होम बायर्स से, उसमें से कुछ 78 जो जेन्युइन होम बायर्स है उनको ट्राइब्यूनल ने
more than 20 crores repatriate कर चुकी है. So this is the case where repatriation has happened and it is going on till 31st March 2025. 78 genuine home buyers को पैसा repatriate हो चुका है. या रोज वैली चिट फंड स्कैम, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम है चिट फंड का. इसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो डिफ्रॉड हुए हैं. थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स से ये बोल के पैसा ले लिया गया है कि आपका जो पैसा है वो एक गुड रिटर्न में वापस किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो सारा पैसा लेके जो फ्रॉडस्टर्स थे वो साइफन ऑफ कर दिया वो पैसा. इस केस में ईडी ने, अभी ट्राइब्यूनल ने डायरेक्टली रेस्टिट्यूशन नहीं शुरू किया. जो थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स थे वो कैलकाटा हाई कोर्ट गए. कैलकाटा हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल करी. कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक एसेट डिस्पोजल कमेटी बनाई, एडीसी. उन एसेट डिस्पोजल कमेटी में करीब 31 लाख क्लेम्स लॉन्च हुए, और एसेट डिस्पोजल कमेटी ईडी के साथ मिलके आज तक 31 मार्च 2015 में 1.5 लाख इन्वेस्टर्स को, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स उनको फाइंड आउट हुए, उनको 538 करोड़ के जो अटैचमेंट थी वो वापस कर चुके हैं, उनको रिपैट्रिएट रिस्टोर हो चुके हैं. तो दिस इज अ केस वेयर इन एसेट डिस्पोजल कंपनी विद ईडी के साथ मिलके उन्होंने मनी को रिस्टोर कर दिया जेन्युइन विक्टिम्स को. अब एक थोड़ा फेमस केस देखें, ये फियो एक्ट का केस है, गीतांजलि जेम्स फ्रॉड. गीतांजलि जेम्स फ्रॉड में क्या हुआ कि मेहुल चोकसी एक बिजनेसमैन है जो कि मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है डायमंड एंड गोल्ड को. गोल्ड एंड डायमंड ऑर्नामेंट्स को वो एक्सपोर्ट करता है. और उन्होंने कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करी, उन्होंने फेक लेटर ऑफ क्रेडिट्स बनाए और फेक अंडरटेकिंग बनाई जिसमें उन्होंने बैंक से लोन लिए और ये शो किया कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं. वो इंपोर्ट बेसिकली बोगस इंपोर्ट थे और उन्होंने अपने वो पैसे को फॉरेन एफिलिएट्स को दे दिया. वो पैसा जब फॉरेन एफिलिएट्स को उन्होंने साइफन ऑफ कर दिया, शोइंग दैट इट इज एन इंपोर्ट. उसके बाद ईडी ने आज तक मेहुल चोकसी के 2565 करोड़ के एसेट्स अटैच करे हैं. और वो एसेट्स जो है वो पंजाब नेशनल बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक को रिपैट्रिएट कर दिया, जो कि एनपीए हो गया था, पब्लिक मनी था, और इवेंचुअली उन बैंक्स को वो पैसा वापस कर दिया अंडर फियो एक्ट, जो कि ईडी ने करा है. तो हमने देखे रेस्टिट्यूशन के केस, हमने देखे करप्शन के केस कि किस तरीके से करप्शन और रेस्टिट्यूशन हो रहा है. अब इसमें एक बहुत ही मेजर टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है पीएमएलए प्रोविजंस में, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सेक्शन 21U ऑफ द पीएमएलए एक्ट. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? कोई भी अर्निंग अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से हो रखी है, कोई भी अर्निंग अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से हो रखी है, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी अगर आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी अर्न कर लिया है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है कि इट शोज एनी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मींस एनीथिंग, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी. आजकल डिजिटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ज्यादा फ्लो हो रहे हैं. ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, एनी प्रॉपर्टी, वेरी वाइड डेफिनेशन, कवर्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो सर्च से रिलेट करता है, उसमें डिपार्टमेंट जो सीजर करता है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की करता है, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. इसमें एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग. और सेकेंडली वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर आप बाहर लेके चले गए हैं, अगर जो अक्यूज पर्सन है, ऑफेंडर, वो पैसा बाहर लेके चला गया है, then also proceeds of crime and then also PMLA is attracted. इसमें सुप्रीम कोर्ट में काफी इसकी वैलिडिटी पे बहस हुई थी कि अगर मैं एक लीगल पॉइंट बताऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 सब आर्टिकल 2 है जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देता है पार्लियामेंट को कि विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया आप लॉ बना सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर कोई पर्सन
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आउटसाइड इंडिया ले गया है, क्रॉस बॉर्डर ले गया है वो, जिसके क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस है, तो हाउ कैन द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अटैच दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? और इंडियन लॉ ऐसा बन सकता है कि फॉरेन जुरिस्डिक्शन में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच कर दे? इसका आंसर है नहीं, नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इंडियन अथॉरिटीज के लिए, ईडी के लिए, कोई भी पैसा बाहर ले गया उसको अटैच करना, अनलेस और अनटिल उस स्पेसिफिक प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए, उस स्पेसिफिक शेड्यूल ऑफेंस के लिए अथॉरिटीज की ट्रीटी बनी हुई हो फॉरेन जुरिस्डिक्शन से। तो ये एक्ट ये कहता है कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फॉरेन में भी ले गए हैं तो भी इक्विवेलेंट अमाउंट जो है, जो इंडिया में प्रेजेंट है, इवन दो उसका लेजिटिमेट सोर्स से फंड है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, बट वो भी ईडी अटैच कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईडी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाले प्रॉपर्टी को नहीं अटैच कर पा रहा है बिकॉज वो फॉरेन ले जा चुके हैं, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है जो कि इंडिया में सिचुएट कर रही है, जिसका लेजिटिमेट सोर्स ऑफ बिजनेस से अर्निंग हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग, सेकेंडली बिकॉज इट इंक्लूड्स वैल्यू टेकन अब्रॉड, तो एक तरीके से पीएमएलए को कह सकते हैं कि इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मिल रखी है, बट अटैचमेंट कैन ओनली बी इन इंडिया। अब अगर हम देखिए कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 3 पे आते हैं, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होते हैं। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इट्स वेरी वाइड डेफिनेशन और उसके अंदर सब कुछ चीजें कवर हो गई है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम चाहे कंसीलमेंट से आए, पोजेशन से आए, एक्विजिशन से आए, प्रोजेक्शन से आए, यूज से आए, कैसे भी आए, अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ है तो चाहे वो ओरिजिनेटर हो, चाहे कोई पर्सन असिस्ट कर रहा हो, एवरी पर्सन इज कवर्ड, एवरी पर्सन जो है वो एक अक्यूज एंड ऑफेंडर माना जाएगा। इवन अगर हम एक प्रोफेशनल्स है जो फैसिलिटेट कर रहे हैं कंसीलमेंट को, तो वी आर ऑल्सो कैल्पेबल। तो कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है कि this is an onus of prosecution, this is an onus of ED to show that the accused has a knowledge of that proceeds of crime, तो ही आप पे पीएमएलए के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। मींस कल्पेबल माइंड होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, ये ईडी को सबसे पहले शो करना है। जो लोग इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उनको ये चीज पता है कि इनकम टैक्स एक सिविल लॉ है, जिसमें अगर आपने कोई गलत डिडक्शन ले ली है देन ऑल्सो डिपार्टमेंट नीड नॉट प्रूव कि यू हैव नॉलेज ऑफ इट और नॉट। विदाउट एनी प्रायर नॉलेज अगर आपने गलत डिडक्शन ले ली है, आप पे पेनल्टीज इंपोज हो जाएगी 270 कैपिटल ए की। जैसे कि कुछ ऐसी है, चैप्टर 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो बोलता है कि सेक्शन 275 ए से लेके 280 सबसेक्शन डी तक, 280 कैपिटल डी तक जितने ऑफेंसेस है, उन सारे ऑफेंसेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये विलफुल इन्होंने डिफॉल्ट करा है, जैसे कि विलफुल इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर विलफुल सबमिशन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट 277 कैपिटल है। वैसे ही जीएसटी में भी, जो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनको पता होगा कि सेक्शन 132 के जितने भी ऑफेंसेस है, जो भी ऑफेंसेस है सेक्शन 132 के, उसमें डिपार्टमेंट को प्रूफ करना है कि विलफुल इवेजन है। डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट दे हैव विलफुल अटेम्प्ट किया है टू एड टैक्सेस, या विलफुल अटेम्प्ट है या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विदाउट इनवॉइस है, या फिर इशू इनवॉइस कर रहे हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर अवेल आईटीसी कर रहे हैं विदाउट एनी रिसीव ऑफ गुड्स। तो इन सारे प्रोविजंस जो 132 बी और सी है या ए है, जितने भी इसमें है जीएसटी एक्ट में, उसको एप्लीकेबल होने के लिए डिपार्टमेंट को कैल्पेबल माइंड प्रूफ करना है, मेंस रिया प्रूफ करना है, विलफुल ऑफेंडर प्रूफ करना है। सिमिलरली पीएमएलए में ईडी प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना है कि ये पर्सन एक विलफुल ऑफेंडर है या ही हैज अ नॉलेज ऑफ इट ऑफेंस। अब अगर हम देखें
तो कौन कौन से ऑफेंस है, कौन कौन से स्केड्यूल ऑफेंस है जो इवेंचुअली प्रिडिकेट ऑफेंस बन जाते हैं, कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी है जिनको करने से पीएमएलए, जिनको करने से अगर उनको करा और उससे मनी अर्न किया तो पीएमएलए अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको 3 शेड्यूल में डिवाइड करा हुआ है, दैट इज शेड्यूल ऑफ पीएमएलए। पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए ऑफेंसेस, शेड्यूल ए ऑफेंस है, शेड्यूल बी ऑफेंसेस है, शेड्यूल सी ऑफेंसेस है। 3 इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। शेड्यूल ए ऑफेंसेस एक्चुअली एनामिनेट्स फ्रॉम 29 एक्ट्स, 29 डिफरेंट एक्ट्स है जिससे शेड्यूल ए ऑफेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 464 कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था रैंसम फॉर किडनैपिंग है। किसी ने किडनैपिंग करी है, वो आईपीसी में एक ऑफेंस है, बट किसी ने उससे मनी अर्न कर लिया किडनैपिंग से, पीएमएलए में ऑफेंस है। या 302 जो मर्डर का है, अगर किसी ने मर्डर किया है वो ऑलरेडी एक ऑफेंस है, बट मर्डर करने से उसने अर्निंग करी है पैसे की, देन पीएमएलए ऑफेंस अट्रैक्ट होता है। या 255 ऑफ द आईपीसी, किसी ने काउंटर फिटिंग करी है गवर्नमेंट स्टैम्प की, गवर्नमेंट स्टैम्प लगाते हुए ही आईपीसी का ऑफेंस हो जाता है, बट उससे अगर मनी अर्न किया है तो पीएमएलए के प्रोविजन इन्वोक हो जाएंगे साथ साथ आईपीसी के। कोई भी एनडीपीएस एक्ट, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट में अगर किसी ने ऑफेंस किया है और उसके में मनी इन्वॉल्व है, मनी अर्न किया है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो रहा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने करप्शन करा है, तो ऑब्वियसली पीएमएलए उसमें इन्वोक होगा ही होगा। सेक्शन 135 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, किसी ने ड्यूटी इवेजन करी है, कस्टम ड्यूटी इवेजन करने की कोशिश करी है, तो दैट इज एन ऑफेंस इन शेड्यूल ए। सेबी एक्ट, कोई पर्सन अगर इनसाइडर ट्रेडिंग दे रहा है, कोई पर्सन टिप दे रहा है और उसके लिए पैसे ले रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग की टिप देके वो पैसे ले रहा है, दैट इज एन ऑफेंस इन मनी लॉन्ड्रिंग। या फिर यूएपीए एक्ट है, कोई टेरर फंडिंग या टेररिस्ट एक्टिविटीज से मनी अर्न कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स बना के मनी अर्न कर रहा है, तो यूएपीए की प्रोविजंस लगेंगे उस पर्सन पे उस एक्टिविटी करने के लिए, और उससे जो मनी अर्न किया उसके लिए पीएमएलए लगेगा। या वाइल्ड लाइफ एक्ट है, आजकल जैसे मतलब इंडिया में एलिफेंट टस्क या आइवरी ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, एलिफेंट टस्क की बहुत ट्रेडिंग होती है, तो एनिमल स्किन्स की ट्रेडिंग होती है, तो वो ऑफेंसेस ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ एक्ट में ऑफेंसेस है, और उससे अगर मनी अर्न किया है तो दैट इज शेड्यूल इन पीएमएलए, क्योंकि वो फंड क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्न है, और अल्टीमेटली वो मनी जो है वो टेरर फंडिंग या ड्रग्स नारकोटिक्स इस तरीके की फंडिंग्स में यूज होगा, वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्निंग हो रखी है। इसमें अगर हम देखिए शेड्यूल ए में, तो इसमें कोई भी इनकम टैक्स का या जीएसटी का ऑफेंस नहीं है। किसी ने इनकम टैक्स का या जीएसटी का फ्रॉड किया है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर पीएमएलए। किसी ने कस्टम का ऑफेंस किया है, कस्टम में ड्यूटी इवेजन करी है, दैट इज एन ऑफेंस इन पीएमएलए, बट इनकम टैक्स और जीएसटी का कोई ऑफेंस पीएमएलए में नहीं है। शेड्यूल बी अगर हम देखिए, शेड्यूल बी में सिर्फ एक ही ऑफेंस है, सेक्शन 132 ऑफ द कस्टम एक्ट, जो कि ये बताता है कि अगर 1 करोड़ से ऊपर के फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है जिससे 1 करोड़ का ऊपर का इवेजन हो रहा है कस्टम एक्ट में, तो शेड्यूल बी लगेगा। शेड्यूल ए के लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, अगर आपने 1 रुपए की भी क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्निंग करी है तो पीएमएलए इवोक हो जाएगा। शेड्यूल बी में 1 करोड़ से ऊपर का ही ऑफेंस होना चाहिए, और सिर्फ एक ही ऑफेंस है सेक्शन 132 ऑफ द कस्टम एक्ट, जो कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलता है। शेड्यूल सी है जो कि ऑफेंसेस हैविंग क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस है, जो भी ऑफेंसेस है जिसमें इंटरनेशनल मनी रिसीव हो रहा है, फेमा का है या ब्लैक मनी एक्ट का है, तो उनको शेड्यूल सी में पीएमएलए प्रोविजंस लगेंगे, और शेड्यूल सी में वो एज एन ऑफेंस माना जाएगा। तो मेजरली शेड्यूल ए ऑफेंस है जिसमें 29 एक्ट्स की ऑफेंसेस है, फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं। 20 शेड्यूल बी के ऑफेंसेस है, कस्टम एक्ट के ऑफेंस है, और शेड्यूल सी सारे के सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग क्रॉस बॉर्डर हो रहा है।
कोई भी ऑफेंसेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑफेंसेस इनकम टैक्स का या जीएसटी का पीएमएलए में नहीं है। आपके कोई भी क्लाइंट ने अगर इनकम टैक्स या जीएसटी में फ्रॉड करा है वो पीएमएलए में नहीं आ सकता, क्योंकि दैट इज नॉट अ शेड्यूल्ड प्रेडिकेट ऑफेंस एक्टिविटी। अब अगर हम देखिए सेक्शन 4 ऑफ द पीएमएलए, जो कि कहता है कि पनिशमेंट क्या होगी। आपने किसी ऑफेंडर ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अटैचमेंट ले लिया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑन किया, उसकी अटैचमेंट कर दिया ईडी ने। अब उस ऑफेंडर को पनिशमेंट क्या होगी? तो कोई भी अगर अर्निंग है जो शेड्यूल ए बी सी से उसने अर्न करा है, तो उस केस में उसको मिनिमम 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट है और मैक्सिमम 7 इयर्स की इंप्रिजनमेंट है। और कोई भी अगर उसने एनडीपीएस एक्ट, जो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट में अगर उसने ऑफेंस किया है, उससे मनी लॉन्डर करा है, ड्रग्स के वाया उसने इलीगल मनी अर्न किया है, देन इंप्रिजनमेंट इज अप टू 10 इयर्स। उस केस में इंप्लीमेंटेशन 10 इयर्स तक के लिए एक्सटेंड हो जाती है। ऑल्दो मेरा भी इसमें एक स्लाइड कंफ्यूजन है कि वाई जो इसका पर्पस था वो था टेरर फंडिंग एंड ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। जब ड्रग्स एंड नारकोटिक्स को इन्होंने 10 इयर्स तक एक्सटेंड किया है, तो इन्होंने टेरर फंडिंग यूएपीए एक्ट को क्यों नहीं 10 इयर्स तक एक्सटेंड किया? उनको इन्होंने नॉर्मल ऑफेंसेस की कैटेगरी में ही डाला है। सिर्फ एनडीपीएस एक्ट के ड्रग्स एंड नारकोटिक्स से अगर किसी ने मनी लॉन्डर करा है, किसी ने मनी अर्न किया है, उसको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ। ये बहुत न्यूज में आता है कि एफएटीएफ एजेंसी है, ये कंट्री ब्लैकलिस्ट हो गई है, ये कंट्री ग्रे लिस्ट हो गई है, इनके बारे में बहुत आता है। तो एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि पूरे ग्लोब से मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को या मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स जो बनते हैं बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसको रोकना है। इंडिया मेंबर बना एफएटीएफ का 2009 में, और आज की डेट में मोर देन 200 कंट्रीज जो है वो एफिलिएटेड विद एफएटीएफ है। तो इनकी इवैल्यूएशन होती है और उसकी इवैल्यूएशन के बेसिस पे ये सर्टेन शॉर्टकमिंग रिकमेंड करती है हर कंट्री को कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो किस हद तक मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट कर पा रही है, किस हद तक मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पा रही है। तो इस समय 3 कंट्रीज ऐसी है जो ब्लैकलिस्टेड है। किसी को पता है कौन कौन सी कंट्री है जो एफएटीएफ ने ब्लैकलिस्ट करी हुई है? जो मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैकलिस्ट हो रखी है कंट्रीज एफएटीएफ की, कौन कौन सी ऐसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में जिनको ब्लैकलिस्टिंग कर रखी है? कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज है जो ब्लैकलिस्टिंग कर रखी है, कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज है जो ग्रे लिस्ट कराई हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो कंट्री ब्लैकलिस्ट है, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, फिर है ईरान, और तीसरी कंट्री हमारी नेबरिंग कंट्री नॉट पाकिस्तान, म्यांमार। तो ब्लैकलिस्टेड कंट्रीज का मतलब ये है कि इन कंट्रीज को के लॉज जो है वो रिलेटिवली वीक है और यहाँ पे मनी लॉन्डर करना बहुत इजी है। अर्निंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी इज वेरी इजी इन दीज कंट्रीज, एंड इनको सिग्निफिकेंटली अपने लॉज और अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इम्प्रूव करना है। ग्रे लिस्ट में मोर देन इस समय 24 कंट्रीज है, प्राइमरीली ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज है, इजिप्ट, इक्वेडर, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका भी इन्वॉल्व है उसमें, जो ग्रे लिस्टिंग है, जिसमें बोला है कि उनको मेजर फॉलोअप रिक्वायर्ड है। उनको ग्रे लिस्ट से हटने के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, उनको अपने लॉज को बेटर इक्विप करना है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, बट अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट गया है। इस समय पाकिस्तान ना ब्लैक लिस्ट में है ना ही ग्रे लिस्ट में है। इंडिया की ऑन साइट इवैल्यूएशन हुई एफएटीएफ की, तो 6 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 ऑलमोस्ट 18-19 दिन एफएटीएफ को लगे इवैल्यूएट करने में। ऑन साइट इवैल्यूएशन हुई और उसके बाद इंडिया को
एक रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में, जो एक डिसेंट कैटेगरी है, उसमें डाला। नाइदर इंडिया कभी भी ग्रे लिस्ट में आया, ना ही वो ब्लैक लिस्ट में आया, और उसको एक अच्छी कैटेगरी में, एक रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में, सफिशिएंट कंप्लायंस कैटेगरी में उसको इंडिया को डाला है उन्होंने अपनी इवैल्यूएशन करने में। अब ये FATF कैसे इवैल्यूएट करता है? FATF की जो रिपोर्ट है, वो जो ऑन साइट इवैल्यूएशन है, उसकी रिपोर्ट आई सितंबर 2024 में, और वो सिंगापुर में प्रेजेंट हुई थी बाकी और कंट्रीज के साथ में, और इंडिया को उन्होंने सफिशिएंट कंप्लायंट कंट्री बोला फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। और वो कैसे करता है? उनके सर्टेन पैरामीटर्स है, उनके अराउंड 40 पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे वो अपनी रिकमेंडेशन करता है, जो कि म्यूचुअल इवैल्यूएटिव पैरामीटर्स होते हैं। उनके 40 पैरामीटर्स है, और हर एक पैरामीटर में वो इवैल्यूएट करता है कि क्या स्टैंडिंग है उस कंट्री के लॉस की और उस कंट्री की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की। तो एक ये बड़ा ब्रीफ ओवरव्यू सा दिया है कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेसेस जो है, ये सारे 40 जो है इनके पैरामीटर्स है। मेजरली इंडिया के जो सितंबर 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने ज्यादातर पैरामीटर्स को लार्जली कंप्लायंट किया या सफिशिएंटली कंप्लायंट कर लिया। कुछ ही पैरामीटर्स है जो कि पार्शियली कंप्लायंट है, और कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जो कि नॉन कंप्लायंट है। तो इंडिया को एज अ गुड कैटेगरी में डाला, और ये मेजरली ऐसे कंप्लायंट इनके रूल्स है। 40 रूल्स के बेसिस पे वो इवैल्यूएशन करता है। अब FATF ने सर्टेन शॉर्टकमिंग्स बताई। शॉर्टकमिंग क्या आई FATF की रिपोर्ट में? FATF ने जो सितंबर 2024 की रिपोर्ट डाली, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया में जो NPO सेक्टर है, जो सेक्शन 8 कंपनी है इंडिया में, या और कोई ट्रस्ट है, दे आर प्रोन टू टेरर फंडिंग। FATF बोलता है कि NPO सेक्टर जो है वो प्रोन टू टेरर फंडिंग है, और यहाँ पे जो है सर्टेन रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली FATF बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि ED है, दे आर heavily focusing on financial frauds, but their less focus is on drugs and human trafficking. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनको जो ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनको भी रोकने की जरूरत है, बट वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। तो FATF ने बोला है कि ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग पे रोक करने की ED को जरूरत है। थर्डली उन्होंने बोला है कि ट्रायल जो है, जो भी अक्यूज पर्सन ऑफेंडर्स पे ट्रायल चल रहा है, उनको एक्सपेडाइट करो, उनको जल्दी करो। बहुत ज्यादा बैकलॉग पेंडिंग हो रखा है केसेस का हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में, और जो ट्रायल है वो जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। तो उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, चाहे जितनी मर्जी लेयरिंग हो रखी है, उनको जल्दी से कंक्लूड करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है DNFBP। इसके लिए इन्होंने बोला है DNFBP। जो फोर्थ पॉइंट है जो इनका शॉर्टकमिंग का है, उसको समझने के लिए हम अगली 2-3 स्लाइड्स में उनका बेसिक समझेंगे कि वो क्या है, DNFBP क्या चीज है। तो PMLA एक्ट में एक रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सी एंटिटी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। ये बहुत ही सिमिलर है जैसे जो लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 285BA होता है। सेक्शन 285BA में सर्टेन अथॉरिटीज है, रेड विद रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल, जो कि बताती है कि आपको ये सर्टेन इंफॉर्मेशन है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देनी है, और वो इनकम टैक्स अथॉरिटी इंफॉर्मेशन से एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती है। जो AIS स्टेटमेंट होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, वो डेवलप करती है। तो उसमें जैसे बैंकिंग कंपनीज है, उनको इंटरेस्ट बताना है कि कौन कौन, चाहे सेविंग बैंक है, चाहे FDR इंटरेस्ट है, वो कौन सा है, या जो म्यूचुअल फंड है, या जो स्टॉक ब्रोकर्स है, उनको बताना है कि उसने कौन कौन से फंड्स जो है वो उन्होंने इन्वेस्ट करा है किस किस उनके क्लाइंट ने। तो वो इन्फॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे या गलत दे तो उनमें 271 FAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा, और उनमें 50,000 की पेनल्टी है। उसी तरीके से PMLA में भी ऐसे ही है।
पीएमएलए में सर्टेन रिपोर्टिंग एंटिटीज बना रखी है कि ये रिपोर्टिंग एंटिटीज है, और ये रिपोर्टिंग एंटिटीज को सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो है वो रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, एफआईयू को, उनको ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है। कौन कौन सी है वो रिपोर्टिंग एजेंसीज? ये है सेक्शन 21WA में इन्होंने डिफाइन कर रखा है बैंकिंग कंपनीज। तो जो भी कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है उनको रिपोर्टिंग करनी है पीएमएलए में, एफआईयू में उनको रिपोर्टिंग करनी है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फंड है, चिट फंड है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो भी सेक्शन 45I ऑफ द आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है उनको रिपोर्टिंग करनी है। या कोई इंटरमीडिएटरीज है जो स्टॉक ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स है, उनको रिपोर्टिंग करनी है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट में। तो उन लोगों को रिपोर्टिंग करनी है एफआईयू इंडिया में, जो कि एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और कुछ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जिनको रिपोर्टिंग करनी है। अभी इस समय कौन कौन से है? जो भी कैसीनो ओनर्स है, या जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स है, और जो भी ज्वेलरी सेक्टर में है, जो ज्वेलर्स है, उन लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। बिकॉज दीज आर द सेक्टर विच आर प्रोन टू मनी लॉन्ड्रिंग। इससे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो है या मनी लॉन्ड्रिंग फ्लो जो है वो बहुत इजीली हो सकता है, या और कोई भी प्रोफेशनल्स जो स्पेसिफाइड हुआ है टाइम टू टाइम, उन लोगों को डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में उन लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 ऑफ द पीएमएलए कि उनको क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। सबसे पहले तो उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। उनकी ऑब्लिगेशन ये है कि कोई भी, सेक्शन 11A बोलता है कि कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो होगी, उसका कोई क्लाइंट आ रहा है, उस क्लाइंट का उसको आधार जो है वो ऑथेंटिकेट करना है। मतलब उसको देखना है कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं है। मीनिंग देयर बाय इसमें टोटल 4 पर्सन है: बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरीज और पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन को ऑफलाइन मेथोडोलॉजी से आधार चेक करना है, और बाकी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएटरी को ऑनलाइन मेथोडोलॉजी से आधार चेक करना है। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी पर्सन अपना बैंक अकाउंट किसी फेक आधार से नहीं ओपन कर सकता। वो जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, उसके पास वैलिड आधार होना चाहिए, तभी वो अपना बैंक में या एनबीएफसी में या फिर फॉर एग्जांपल अपना स्टॉक अकाउंट जो है वो तभी बना सकता है जब उसके पास वैलिड आधार हो। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ये चेक नहीं करेंगे तो सेक्शन 11A का वायलेशन होगा। उस रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट के लिए 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। 5 ईयर्स तक उसे मेंटेन करने हैं, सेक्शन 12 ये बोलता है पीएमएलए का। फिर अब एक आता है जो कि और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जो रिलेटिवली टफ है। सेक्शन 12AA बोलता है कि उन रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता होनी चाहिए, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड क्या है। बैंक को ये पता होना चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पता होना चाहिए टेम्परली या टेक्निकली कि इस पर्सन का प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। दे कैन आस्क यू कि आप हमें अपने क्लाइंट का सोर्स ऑफ फंडिंग बताइए। और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही है। जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही है वो उन लोगों को एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को वो रिपोर्टिंग करनी है, और वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। उनको वो रिपोर्टिंग करनी है एफआईयू को। अगर वो ये रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो सेक्शन 15 में डायरेक्टर जो है एफआईयू का, वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है 10,000 से लेके 1 लाख तक की ऑफ ईच फेलियर। हर फेलियर की वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है। और टू सेफगार्ड दैट रिपोर्टिंग एंटिटी, कि किसी ने वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी है तो उस रिपोर्टिंग की वजह से उस एंटिटी पे कोई भी सिमिलर क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकता। सेक्शन 14 प्रोटेक्शन देता है
दिस प्रोटेक्शन इज वेरी सिमिलर, जो लोग से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है कि सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज कि जो भी असेसिंग ऑफिसर है वो इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, अपने असेसमेंट ऑर्डर्स के टाइम पे, जो भी वो अपने एक्टिविटी, जो भी अपने प्रोफेशन में वो कर रहा है, कोई भी एसएससी उसको क्रिमिनल और सिविल सूट नहीं फाइल कर सकता। जीएसटी में भी ऐसा है, सेक्शन 121 और सेक्शन 159 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप केयर फ्री काम करिए। अगर आपको अपील करनी है तो आप 107 में जाइए या 246 कैपिटल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में जाइए। आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट में आप केस नहीं कर सकते। सिमिलरली पीएमएलए में जो भी एंटिटी, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो एफआईयू में अगर ट्रांजैक्शन दे देती है तो उसके अगेंस्ट में उस रिपोर्टिंग के लिए कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग रिपोर्टिंग करें। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 मई 2023 एफएटीएफ रिपोर्ट आने से पहले ही जो सेक्शन 2SA है, जो कि पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैसीनो या रियल एस्टेट एजेंट या ज्वेलर्स, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज को भी इंक्लूड कर दिया। 3 मई 2023 की नोटिफिकेशन ने इन तीनों प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को इंक्लूड करा है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए बोला है? हर एक्टिविटीज के लिए नहीं, उन्होंने बोला है कि जो एक्टिविटीज आप ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विस नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आप बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो तो उस केस में आपको रिपोर्टिंग करनी है एफआईयू को। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट का मनी मैनेज कर रहा है या उस क्लाइंट का जो है सिक्योरिटीज या अदर एसेट्स उसने अपने नाम पे ले रखा है, मनी वहां से लेता है, तो उसको रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है एफआईयू में। या उसने वो अपने क्लाइंट का बैंक अकाउंट सारा मैनेज करता है, सिक्योरिटीज मैनेज करता है, या वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को वो चलाता है, सारा ऑपरेट वो करता है, उसकी क्रिएशन करता है और क्रिएटर में होता है मेन। तो अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के बिहाफ में ये एक्टिविटीज करता है तो उसे सेक्शन 11A से लेके सेक्शन 15 तक की जो कंप्लायंस है, चैप्टर 4 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, वो उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा सेक्शन 14 में एफआईयू को, एफआईयू इंडिया को उसे रिपोर्टिंग करनी है। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो उसे 10,000 से 1 लाख रुपीज ऑफ ईच फेलियर पेनल्टी लग सकती है। अब अगर हम थोड़ा देखें तो स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईसीआई ने रिवाइज कोड ऑफ कंडक्ट निकाले हुए हैं, रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स निकाले हुए 2019 में, वे बिफोर दिस नोटिफिकेशन 2023 की। उसमें सेक्शन 350 है, रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स में सेक्शन 350 है, जो कि बोलता है कि कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई क्लाइंट के एसेट्स जो है वो अपने कस्टडी में नहीं ले सकता। अगर वो अपने क्लाइंट के एसेट कस्टडी में ले लेगा तो दैट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता। तो बिकॉज देयर इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मैनेजिंग क्लाइंट मनी है, ये ऑलरेडी बार्ड था बाय आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स नहीं मानते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कोड ऑफ एथिक्स नहीं मानता है, तो उसमें क्लॉज 11 पार्ट ए शेड्यूल 1 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 21 ऑफ द आईसीआई एक्ट, और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलेगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है, जो रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस जब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर रहा तो वो इस रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स से बाहर नहीं है, लेकिन वो ये एक्टिविटी कर रहा है तो उसे
FIU में रिपोर्टिंग करनी जरूरी हो गई है 3rd में 2023 के बाद। तो सबसे पहले तो जो ऑडिट कर रहा है उनके लिए वो बार्ड है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ये काम, बट उनको बस रिपोर्टिंग करनी है। एक बारी वो रिपोर्टिंग कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन FIU के पास चली जाती है, देन इट इज अप टू FIU प्रेरोगेटिव वेदर टू इनिशिएट एनी एक्शन और नॉट। उनको वो सस्पिशियस लगेगा, जो हमें सस्पिशियस लग रहा है उनको वो सस्पिशियस लगेगा तो वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली इज टू इंटीमेट FIU रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन। अब वो कैसे इंटीमेट करेगा वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे इंटीमेट करेगा। उससे पहले ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है जो रिपोर्टिंग एंटिटीज को इंटीमेट करनी है FIU को, वो बतानी है। तो PMLA के 2005 में रूल्स आए थे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स। इसमें PMLA के रूल्स डेवलप हुए हैं। तो पहला जो रूल 3 है वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो अबव 10 लाख रुपीस है वो रिपोर्टिंग एंटिटीज को FIU को रिपोर्ट करनी है। कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपीस से ऊपर की को रिपोर्टिंग करनी है, या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है जो यूजिंग फॉर्ज अगर नोट से उनको पैसे मिले हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है, या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन जो NPO से हो रखी है विद FIU विद रिपोर्टिंग एंटिटी, वो FIU को रिपोर्ट करना है। और कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस वो FIU को रिपोर्ट करना है। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है 2G में, रूल 2G में, जो कि बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, आपको सस्पिशन हो रहा है कि हो सकता है कि इसके अंदर दिस इज बीइंग अर्न्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी, या फिर वो वाली ट्रांजैक्शन में उनको कोई भी अपैरेंट इकोनॉमिक और लॉफुल पर्पस नहीं दिखता, या फिर वो ऐसी ट्रांजैक्शन हो रखी है जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हो रखी है ताकि वो रूल 3 की गाइडलाइंस को ब्रेक करे। फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है वो बार बार ही 9,99,000 की कैश ट्रांजैक्शन करे जा रही है, मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शन कर रही है 9,09,000 की, 10 लाख की लिमिट को ब्रीच करने के लिए। तो वो वाली सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है जो उसको रिपोर्ट करनी है FIU को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को उसको रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है? जो रूल 3 में ट्रांजैक्शंस है उसको SFT ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि मीनिंग की स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो वो रिपोर्ट करना है हर महीने की 15th को। दिस मंथ ओवर हुआ, इसकी नेक्स्ट 15th को उसको उस महीने की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है FIU में। और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन उसे विदिन 7 डेज रिपोर्ट करनी है जब ट्रांजैक्शन अकर हुई है। और ये जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है इसमें फुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाएगी FIU के थ्रू। और ये जो है ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 14 कि आप सेक्शन 12 कि आपको ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। तो अगर किसी के एग्रीमेंट बना हुआ है जो कि ये इस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग से क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट नहीं ब्रीच हो सकता। किसी ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना रखा है कि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, बट उसको अगर ये वाली ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे वो रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, उससे कोई ब्रीच नहीं होगा। और सेक्शन 14 से उसको प्रोटेक्शन है। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि इस बैंकिंग अथॉरिटी ने या इस डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल ने मेरी ट्रांजैक्शन कैसे ED को या FIU को रिपोर्ट कर दी। दैट इज रिपोर्टिंग एंटिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हमें कोई भी एंट्री जो है सस्पिशियस दिख रही है, ऑल्दो हमें वी आर नॉट ऑब्लिगेटरी टू रिपोर्ट इट, हमें सिर्फ ऑब्लिगेशन वो 5 एक्टिविटीज ही रिपोर्ट करनी है। लेकिन अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर हमें ऑडिट करते हुए दिखी तो वी कैन रिपोर्ट इट इन FIU और वी कैन लोअर डाउन आवर रिस्क। अगर आपने रिपोर्टिंग करी है तो आपका रिस्क लोअर डाउन हो जाएगा। मेरे पास जिन लोगों के क्लाइंट्स ज्वेलर होंगे या कोई रियल एस्टेट एजेंट होंगे, मेरे पास 2-3 बारी ज्वेलर्स के फोन आ चुके हैं कि सर हमें सेक्शन 11 से शो कॉज नोटिस, हमें समन रिसीव हुआ ED से। मैं पूछता हूँ अच्छा क्या ट्रांजैक्शन करी है? वो कहते हैं इस पर्सन के साथ हमने 2011 में
ट्रांजैक्शन करी थी, 3-4 लाख रुपए की कैश की ट्रांजैक्शन थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग सेफ हो, 10 लाख से नीचे की थी तो तुम लोग सेफ हो, तुम्हें रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अदरवाइज तुम्हारे पे 10,000 से लेके 1 लाख की ईडी पेनल्टी लगा सकता था डायरेक्टर जो है। बट ज्वेलर्स को ये भी डिटरमाइन करना है कि उनके पास जो क्लाइंट आ रहा है उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी है, वो उससे सिंपली पूछ सकती है। अगर उसको वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है और वो रिपोर्ट कर देता है तो एटलीस्ट वो सेक्शन 11 से समन आने के चांसेस काफी नलीफाई हो जाते हैं। तो जितने भी ज्वेलर्स है या जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स है, दे आर अंडर द लेंस ऑफ ईडी ऑलवेज। उनके उनके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हमें उनमें लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो हमें अपने लोअर डाउन रिस्क करने के लिए वी कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट, रादर देन कि क्लाइंट को छोड़ दे। बेटर है कि वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दे, क्लाइंट को भी नहीं पता लगेगा कि उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिपोर्ट हो रखी है, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज मेंटेन्ड है। तो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है। SFT ट्रांजैक्शन, STR ट्रांजैक्शन। SFT ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या STR ट्रांजैक्शन में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो 2G में इन्वॉल्व है, या CTR ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन है। उसमें करने के लिए एक वेबसाइट है fiuindia.gov.in। उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें रिपोर्टिंग एंटिटी डालेंगे, आपको थोड़ी अपनी डिटेल डालनी होगी, पैन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी। आपको एक लॉगिन से प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट मिल जाएगा। वो प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वो आपकी ट्रांजैक्शंस देखेगा कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस फाइल करी है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिपोर्ट करी है उसको 5 ईयर्स तक आपको मेंटेन करके रखना है अपने रिकॉर्ड्स में। 5 ईयर्स के जो रिकॉर्ड मेंटेन है वो रिलेटिवली बाकी जो और भी बाकी इनकम टैक्स एक्ट है, GST एक्ट है या कंपनीज एक्ट है, उससे रिलेटिवली कम ही पीरियड है। तो उसमें हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते ही है। बट हाँ, कुछ सर्टेन एडिशनल रिकॉर्ड्स है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय सेल कर रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो जो कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है, तो उस चीज के लिए आपके पास उनका पैन नंबर और उनकी ये डिटेल्स भी होनी चाहिए कि वो क्या उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्योंकि ईडी कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। अब जो इसमें फोर्थ पॉइंट था, जो FATF शॉर्टकमिंग में फोर्थ पॉइंट था कि एनहांस सुपरविजन ऑफ द डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें पहला NPO और टेरर फंडिंग से रिलेटेड था। दूसरा उन्होंने बोला कि लेस फोकस ऑन ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मोर फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड है। तीसरा एक्सपीडाइट ट्रायल है। फोर्थ उन्होंने बोला कि डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्रोफेशन जो है, इसमें फाइनेंशियल एंड बिजनेस फाइनेंशियल जो प्रोफेशन है वो है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएटरीज, ये ठीक है। बट जो 2SA है जो कि पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन, इनके लिए इन्होंने बोला FATF ने, FATF सेज कि ये जो लोग हैं DNFBP, ये लो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो है ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये शॉर्टकमिंग बोली है FATF ने। FATF बोल रहा है कि इन लोगों को सबसे पहले तो लिमिटेड अवेयरनेस है। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इन्हें लिमिटेड अवेयरनेस है, इनको पता ही नहीं है कि रिपोर्टिंग करनी भी है, और दूसरा इनको फियर है रिपोर्ट करने से। ये लोग सफिशिएंट ट्रांजैक्शंस नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या और जो डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स है, वो FATF ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का उन्होंने बोला, इनफैक्ट जो FATF की रिकमेंडेशन है उसमें ये बोला है कि जो ऑडिटर्स है उनको भी इसमें इंक्लूड करो, जो ऑडिट करते हैं अगर उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। बट थैंकफुली अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन नहीं आई है कि ऑडिटर्स को भी रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है। फिर उन्होंने बोला है कि जो ज्वेलर्स है, जो ज्वेलर सेक्शन है, जो ज्वेलरी सेक्शन है, और डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स है, उनको भी रिस्क मिटिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है। उनके प्रोसीजर्स वीक है। जो सिंपल कैश प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन है, जो इनकम टैक्स में कैश प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन है, 269SS, 269ST, 269T,
ये ट्रांजेक्शन जो है दे आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोहिबिट और मिटिगेट रिस्क। ये ट्रांजेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, ये जो लॉज है दे आर नॉट सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टिंग कैश फ्लोज या कैश सर्कुलेशन। तीसरा उन्होंने ये बोला है, FATF की रिकमेंडेशन आई है कि जो भी डाटा DNFBP से आ रहा है, जो भी सस्पिशियस डाटा का DNFBP से आ रहा है, तो FIU के पास खुद के पास कोई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं है, उनके पास एनालिटिक्स नहीं है कि कैसे उस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके वो एक्शन ले। उनका खुद के पास एक्शन प्लान नहीं है उस ट्रांजेक्शन्स का। तो FATF कहता है कि FIU के पास खुद के पास एक फुल प्रूफ प्रोसीजर नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है उन ट्रांजेक्शन्स को डिटरमाइन करने का। अब FIU को क्या करने की जरूरत है ताकि FATF की जो रिकमेंडेशंस आई है उनको फुलफिल कर पाए और हम इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट कर पाए। सबसे पहले तो FIU को ट्रेनिंग सेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स DNFBPs के लिए कंडक्ट करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि आपको ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। जब वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे देन ओनली मनी लॉन्ड्रिंग की कम्बैटिंग के सीड्स जो है वो शो होंगे। उनको जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा है उनका, उसमें उनको देखना है कि कितना वॉल्यूम है, किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, कितना कैश यूजेज है, क्या उसकी कंप्लायंस हिस्ट्री है, इस तरीके के उनको एनालिटिक टूल्स बनाने हैं FIU को। और तीसरा उन्होंने बोला है कि उनको गाइडलाइंस और रेड फ्लैग इंडिकेटर्स देने हैं सेक्टर स्पेसिफिक। आपको कैसे पता लगेगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो सेक्टर स्पेसिफिक इनको गाइडलाइंस फॉर्म करनी है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज जो है वो बेटर डिटेक्ट हो पाए। FIUs को ये चीजें करने की जरूरत है सो दैट जो FATF की रिकमेंडेशन शॉर्टकमिंग्स है उनको वो फुलफिल कर पाए। अब अगर हम देखें तो एक छोटा सा मैंने बताने की कोशिश करी है कि PMLA जो है वो इनकम टैक्स और GST से कैसे इंटरप्ले उनका होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो कई लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कई लोग GST की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कैसे PMLA जो है उसका इनकम टैक्स से क्या कोऑर्डिनेशन है। तो PMLA की प्रोसीडिंग्स एंड इनकम टैक्स एंड GST की प्रोसीडिंग्स दे आर कंप्लीटली सेपरेट, कंप्लीटली पैरेलल प्रोसीडिंग्स है। जैसे इनकम टैक्स की और GST की प्रोसीडिंग्स पैरेलल है कि GST की प्रोसीडिंग सेम ईयर की चल रही होती है, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग सेम ईयर की चल रही होती है, उसी तरीके से PMLA की प्रोसीडिंग्स जो है वो भी सेम ईयर से चल रही होती है। बट सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 ऑफ द PMLA एक्ट जो है वो बताता है कि किस तरीके से अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है या और कोई प्रॉपर ऑफिसर है GST में, उसको दिखता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उससे वो ED को बताना है, उसको वो इन्फॉर्मेशन ED के साथ शेयर करनी है। जैसे इनकम टैक्स और GST आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी तरीके से उन GST और इनकम टैक्स को ED के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर कहीं सर्च हुई है सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में या से कोई भी रीअसेसमेंट में असेसमेंट में उनको किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे वो सस्पिशियस इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको लगता है कि इसके अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, तो फिर वो ED के साथ उनको शेयर करनी है। मैं एक एग्जांपल देके बताऊं तो फॉर एग्जांपल किसी ने 50 लाख रुपीस रैंसम फ्रॉम किडनैपिंग से अर्न करे, उसने उसमें टैक्स दे दिया, तो असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट क्वेश्चन द सोर्स कि अच्छा आपका सोर्स इलीगल है, उसकी प्रोसीडिंग्स वहीं पे खत्म हो जाएगी अगर उसने टैक्स पे कर रखा है। बट दैट असेसिंग ऑफिसर कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद ED, और ED जो है वो फिर अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ECIR फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी कहता है कि अगर इनकम टैक्स असेसमेंट पेंडिंग भी है तो भी ED की इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो सकती है, दे आर कंप्लीटली पैरेलल। इनकम टैक्स असेसमेंट हुई वो नील पे हो गई, तो फाइंडिंग्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट बाइंडिंग ऑन ED। इनकम टैक्स असेसमेंट की कोई भी फाइंडिंग्स ED पे बाइंडिंग नहीं है, वो कंप्लीट सेपरेट पैरेलल प्रोसीडिंग्स है। सिमिलरली GST में फ्रॉड्स होते हैं, जो 132 में फ्रॉड्स है, फेक इनवॉइसिंग के जो फ्रॉड्स है,
सर्कुलर ट्रेडिंग होती है जीएसटी में, नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म्स बना के सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, फेक इनवॉइसेस होते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज बना के वो आईटीसी का रिफंड लेते हैं, आईटीसी बोगस आईटीसी जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड देन रिफंड क्लेम करते हैं। तो ऐसे ही एमपी हाई कोर्ट ने बोला है कि ईडी कैन प्रोसीड इवन बिफोर जीएसटी एजुकेशन कंक्लूड्स। जीएसटी एजुकेशन के कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है ईडी की प्रोसीडिंग्स का। अब जैसे अगर एक केस है, कभी कभार ना ऐसा सुनने में आता है, अच्छा जीएसटी फ्रॉड हुआ और पीएमएलए के प्रोसीडिंग्स अटैच हो गई, पीएमएलए के प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकम टैक्स का या जीएसटी का कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो है वो पीएमएलए के ऑफेंसेस में नहीं है। तो एक मैटर क्या हुआ, से जीएसटी में एक कंपनी थी मेसर्स अल्फा ट्रेडर्स, उन्होंने देखा कि ये जीएसटी फेक इनवॉइसेस फॉर्म कर रहे हैं 8 करोड़ के विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, और इलेजिटिमेट इलीगल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी जो है वो ले रहे हैं और उसका रिफंड भी ले रहे हैं। दिस इज एन ऑफेंस अंडर 132 जीएसटी एक्ट के 132 में, दिस इज एन ऑफेंस। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब देखा गया कि उस अल्फा ट्रेडर्स ने बहुत सारे फॉर्ज पैन, बहुत सारे फॉर्ज आधार कार्ड नंबर और डिफरेंट फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो थे वो उन्होंने प्रोवाइड करे इन एडजुडिकेशन। वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने वो देखे कि ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट को यूज करते हो कोई चीज को लीगलाइज करने के लिए, then it is an offense in IPC under section 470, 467 से लेके 471 तक के ऑफेंसेस में फॉर्ज डॉक्यूमेंट या फॉर्ज मटेरियल अगर आप यूज करते हो, then it is an offense in IPC, और that is a schedule, that is a predicate offense in PMLA। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो जीएसटी ऑफिसर्स जो है वो पीएमएलए को दे सकता है। तो इवन दो जीएसटी फ्रॉड जो है वो एक नहीं है प्रेडिकेट ऑफेंस, बट अगर आपने फॉर्जरी और चीटिंग करी है जो अकम्पनीज करती है जीएसटी फ्रॉड के साथ में, देन ईडी कैन डू और इनिशिएट पीएमएलए ऑफेंस, पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जीएसटी फ्रॉड किया, ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी के यूज करे हैं। और पीएमएलए ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर फॉर्जरी डॉक्यूमेंट जो है वो जीएसटी फ्रॉड अकम्पनी कर रहे हैं तो उन पीएमएलए प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो सकती है, इवन दो जीएसटी फ्रॉड इज नॉट ए शेड्यूल ऑफेंस इन पीएमएलए। तो इस मैटर में ईडी ने केस रजिस्टर्ड किया, ईसीआई रजिस्टर्ड किया, उन्होंने देखा कैसे कैसे शेल कंपनी के थ्रू पैसा जो है वो जा रहा है, और 5.2 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच कर ली उसकी। तो ये एक छोटा सा इंटरप्ले था कि पीएमएलए, इनकम टैक्स से जीएसटी जो है वो किस तरीके से पैरेलली रन करते हैं, बट इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो उसकी रेगुलर बेसिस पे होती है। अगर हम फॉल्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो इनकम टैक्स में 277 कैपिटल ए बोलता है कि वो एक्शन ले सकता है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स में, असेसिंग ऑफिसर 2 years की इम्प्रिजनमेंट है। या जीएसटी में अगर हम फॉल्स डॉक्यूमेंट करते हैं तो जीएसटी में प्रॉपर ऑफिसर एक्शन कर सकता है, 132(1)(f है, जो कि बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, वो फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। बट ईडी के जो प्रोविजंस है दे आर मच मोर सीवियर, दे आर मच मोर ड्रैकोनाइन देन इनकम टैक्स और ईडी, बिकॉज इसमें विलफुल डिफॉल्ट के प्रोविजंस भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजें इसमें कवर करी है, मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है बिकॉज हम एट द एंड में आ चुके हैं। अब हमने इसमें क्या क्या चीजों की कवरिंग करी है। पीएमएलए में टोटल 10 चैप्टर्स है। हमने जो प्राइमरीली कवर करा है वो सबसे पहले चैप्टर 1 के है, जो 1 and 2 है, सेक्शन 1 and 2 है, जो कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। सेक्शन 3 and 4 है जो कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किस किस तरीके की होती है वो बताता है। शेड्यूल ऑफेंसेस के बारे में बताता है और क्या इसकी पनिशमेंट है, सेक्शन 4 में पनिशमेंट बताता है। और हमने चैप्टर 4 पढ़ा है जो कि सेक्शन 11A से सेक्शन 15 है, कि जो कि ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज है।
ऑब्लिगेशंस क्या क्या थी रिपोर्टिंग एंटिटीज की? सेक्शन 11A आधार कार्ड उनको चेक करना है। सेक्शन 12 उनको FIU में बतानी है इंफॉर्मेशन। सेक्शन 12AA उनको ये भी पता होना चाहिए उस रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या सोर्स ऑफ फंड है। ईडी आपसे अपने क्लाइंट का सोर्स ऑफ फंड पूछ सकती है एंड यू कैनॉट से नो कि हमें सोर्स ऑफ फंड नहीं पता, अदरवाइज पेनल्टी अंडर सेक्शन 15 कैन बी देयर। PMLA रिलेटिवली काफी अच्छा लॉ है, काफी स्ट्रिक्ट लॉ है और इसमें मल्टीपल चीजें हैं। अटैचमेंट कैसे होती है वो सेक्शन 5 से 11 में है, कैसे एडजुडिकेशन होती है, कैसे ईडी समन भेजता है, कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है सेक्शन 50 में, किस तरीके से सर्च एंड सीजर के एक्शन होते हैं, किस तरीके से बेल के प्रोविजंस है। तो ये बाकी ये चैप्टर्स में है जो उसकी एक्चुअल लीगैलिटी डिटरमाइन करते हैं PMLA की। अभी जो मैंने बोला है वो प्राइमरली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस एंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समझने के लिए बोला है कि किस किस तरीके से एक बेसिक ओवरव्यू दिया है और किस किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने क्लाइंट के अगर उससे लगता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो वो वॉलंटरी भी डिस्क्लोज कर सकता है FIU में और मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने में हेल्प कर सकता है कंट्री की। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो I would like to take any queries. Love to take any queries. किसी की अगर कोई क्वेरी हो हाँ मैं PPT शेयर करूंगा। मैंने राज चावला जी को PPT दे दी है, वो सबसे शेयर करेंगे और ये इसकी रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर देंगे। ऋषभ जी ने पूछा है किसी की और कोई क्वेरी हो, किसी की ईडी को कोई समन आया हो या कोई ईडी से रिलेटेड PMLA के एक्ट से रिलेटेड उनको किसी को कोई डाउट हो या इस स्लाइड में कोई डाउट हो रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में पूछने के लिए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, ठीक है। आकांक्षा? Yes, sir. हाँ आकांक्षा, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते सर एंड कर दूं मैं? हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके Okay, सर। thank ओके।